الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. عید میلاد النبی ہے، دل بڑا مسرور ہے، ہر طرف ہے شادمانی، رنج و غم کافور ہے. آمد سرکار سے ظلمت ہوئی کافور ہے، کیا زمین کیا آسماں ہر سمت چھایا نور ہے. سرکار کی آمد، مرحبا. آقا کی آمد، مرحبا. نبی کی آمد، مرحبا. امی کی آمد، مرحبا. آقا عطار کی آمد. مرحبا. ماشاءاللہ. ایک بار پھر مدنی چینل کے ناظرین ربیع الاول اسپیشل پروگرام زیر و زبر لیے آپ کے ساتھ حاضر ہیں، اور آج ہمارا 5واں مقابلہ ہے، اور آج ہمیں تلاش ہے اپنے 5ویں کنٹیسٹنٹ کی جس نے پارٹیسپیٹ کرنا ہوگا ہمارے سیمی فائنل میں. حسب معمول ہمارے ساتھ آج بھی 6 ڈیفرنٹ اسکولوں سے 6 اسٹوڈنٹس موجود ہیں جن کے درمیان ہم آج کا مقابلہ کروائیں گے. مقابلہ سیکوینس وائز آگے بڑھتا چلا جائے گا اور تیسرے راؤنڈ کے بعد ہماری ایلیمنیشن ہونا شروع ہو جائے گی. تو آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور بلا تاخیر اپنے کنٹیسٹنٹس کا تعارف لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ کریم آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے. باری باری اپنا نام بھی بتائیں گے اور ہمیں بتائیں گے کہ آپ کس اسکول سے آئے ہیں، کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں اور کیسی تیاری کر کر آئے ہیں. My name is Mohammad Gamit. I study in class 8 and I am student of the International Grammar School. دی انٹرنیشنل گرامر اسکول سے ہمارے ساتھ غامد موجود ہیں. مرحبا کرتے ہیں آپ کو، ویلکم کرتے ہیں. کیسی تیاری ہے آپ کی غامد؟ بہت اچھی ہے. ماشاءاللہ. گڈ. اگلے کنٹیسٹنٹ. میرا نام محمد معیز ہے. میں جماعت منجوم کا طالب علم ہوں. میں پرو ایکٹیو اسکولنگ سسٹم میں پڑھتا ہوں. چلیں جناب محمد معیز ہمارے ساتھ موجود ہیں، 5ویں کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں اور پرو ایکٹیو اسکولنگ سسٹم کا حصہ ہیں. آپ کو بھی خوش آمدید کرتے ہیں. اگلے کنٹیسٹنٹ. میرا نام عبدالہادی ہے اور میں کلاس 6 کا طالب علم ہوں اور میرے اسکول کا نام دی انوویٹو اسکول ہے. دی انوویٹو اسکول سے ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالہادی. خوش آمدید کرتے ہیں، آپ کو بھی مرحبا کہتے ہیں. جی اگلے کنٹیسٹنٹ. میرا نام محمد جنید ہے. میں پڑھتا ہوں مدرسہ المدینہ الفاروق مسجد میں. ماشاءاللہ. جنید حفظ کر رہے ہیں، ناظرہ پڑھ رہے ہیں؟ حفظ کر رہا ہوں. ماشاءاللہ. کتنے پارے حفظ کر چکے ہیں؟ 18 پارے حفظ کر چکا ہوں. 18 پارے حفظ کر لیے ہیں. کیا بات ہے جناب. کتنی ایج ہے آپ کی؟ 12 سال. 12 ایئر میں 18 پارے پڑھ لیے ہیں. ناظرین کتنا خوبصورت انداز ہے. اللہ کریم آپ کو جلدی جلدی حافظ قرآن بنائے اور قرآن کے نور سے اللہ ہم سب کے دلوں کو منور فرمائے. ماشاءاللہ. اگلے کنٹیسٹنٹ. میرا نام زین العابدین ہے. میں 5 کلاس میں پڑھتا ہوں. میرے اسکول کا نام دا نیشنل اسکول ہے. ماشاءاللہ. آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. آج کے پروگرام کے آخری کنٹیسٹنٹ. My name is Abdullah. I study in class 8. My school name is Park Shan Cambridge School. We are welcoming you. ماشاءاللہ. اللہ کریم آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے. امید ہے کہ بھرپور تیاری کر کر آئے ہوں گے. بلا تاخیر مقابلے کو آگے بڑھائیں گے اور شروع کریں گے راؤنڈ 1. مگر اس سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ راؤنڈ 1 میں آپ کو 3 منٹ کا ٹائم دیا جائے گا. 180 سیکنڈز کا یہاں پر کاؤنٹر چلایا جائے گا اور آپ سب سے سوالات ہوں گے. جواب وہی دے گا جو بزر بجانے میں کامیاب ہو جائے گا. کیا کرنے میں کامیاب ہوگا؟ بزر بجانے میں. جی ہاں. تو آپ نے سوال کمپلیٹ سننا ہے اور بزر بجانی ہے، مگر کوشش کرنی ہے کہ سب سے پہلے بزر بجانی ہے. جس کی بزر بیپ کرے گی اسی سے ہم سوال لیں گے، اور اگر آپ نے کریکٹ آنسر کیا تو آپ کو دیے جائیں گے 10 پوائنٹس، اور اگر غلطی ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ -10. جی جناب -10. تو میں امید کروں کہ آپ زیادہ سے زیادہ نمبر گین کریں گے جی انشاءاللہ. چلیں جی تو آئیے شروع کرتے ہیں ہمارے آج کے مقابلے کا راؤنڈ 1. کاؤنٹر چلائیے. راؤنڈ 1 کا پہلا سوال. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے محترم نام محمد کا معنی بتائیں. محمد معیز. وہ ذات جس کی تعریف کی جائے. وہ ذات جس کی تعریف کی جائے. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. بتائیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو ام المؤمنین کہا جاتا ہے. ام المؤمنین کا معنی کیا ہے؟ جی غامد. برکت والا. نہیں جناب، اس کا معنی ہے مومنوں کی مائیں. غلطی ہوئی ہے. 10 نمبر مائنس ہوں گے. اللہ اکبر. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پردادا ہاشم کا اصل نام کیا تھا؟ معیز. شیبہ. نہیں جناب، لگتا ہے تیاری کمزور ہے. آپ کا نام تھا عمر
10 नंबर माइनस कर दिए जाएंगे। अल्लाहु अकबर। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कासिम हैं, कासिम का माना बताएं। जुनैद, कासिम के मायने तकसीम करने वाला। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक नाम हम्माद भी है, हम्माद का माना बताएं। जुनैद, हम्माद के मायने हम्द करने वाला। अल्लाह पाक की बहुत हमद करने वाला। जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। कयामत में हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किस हौज से लोगों की प्यास बुझा रहे होंगे? मोहम्मद अब्दुल्ला, हौज़ कौसर। हौज़े कौसर। जवाब दुरुस्त दे दिया है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी शहजादी बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की अम्मी जान का नाम बताएं। गामिद, हजरत खतीजा। बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कल कयामत में इज्जत का कौन सा मकाम अता किया जाएगा? जुनैद जवाब देंगे। मकाम महमूद अता किया। मकाम महमूद। जवाब दुरुस्त दे दिया है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फेवरेट कलर कौन सा है? जुनैद, ग्रीन। जवाब दुरुस्त दिया है। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुबारक भी हैं। मुबारक का माना क्या है? मोहम्मद अब्दुल्ला, हमद करने वाला। नहीं जनाब, गलती हुई है। माना है बरकत वाले। 10 नंबर माइनस कर दिए जाएंगे। अल्लाहु अकबर। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक जूतों को अदब से क्या कहा जाता है? मुईज, नालेन शरीफ। नालेन शरीफ। जवाब दुरुस्त दिया है। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तमाम जहानों के लिए रहमत हैं। इस वजह से आपको क्या कहा जाता है? गामिद, रहमतुल मुमिनीन। रहमतुल लिल आलमीन। गलती हुई है। 10 नंबर माइनस कर दिए जाएंगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तग़दब। इसका माना बताएं। मुईज, गुस्सा ना करो। गुस्सा ना करो। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरामीन को क्या कहा जाता है? मुईज, हदीस। हदीस पाक। जवाब दुरुस्त दिया है। वो हदीस जिसको बयान फरमाने वाले हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हो और निस्बत अल्लाह पाक की तरफ हो, उस हदीस पाक को क्या कहा जाता है? वंस अगेन मोहम्मद मुईज। हदीस कुदसिया। हदीस कुदसी। जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। इसी के साथ नाज़रीन हमारा पहला राउंड कंप्लीट हुआ। आइए आपको दिखाते हैं और बताते हैं किसने कितना स्कोर बनाया। अनबिलीवेबल, पहली बार ऐसा हुआ है कि पहले राउंड में बहुत सारे बच्चों ने 0-0-0 लिया हो। 3 बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर आगे नहीं बढ़ा सके और वो हमारे साथ 0 पर मौजूद हैं। द इनोवेटिव स्कूल से आए हुए गामिद का स्कोर है -10। अल्लाहु अकबर। मुईज का स्कोर हुआ 40 पॉइंट्स। द इनोवेटिव स्कूल से अब्दुल हादी हमारे साथ मौजूद हैं, मगर पहले राउंड के आखिर में इनका कोई स्कोर नहीं। हमारे साथ मौजूद हैं 0 पॉइंट। अल्लाहु अकबर। जुनैद रजा मदरसतुल मदीना से हमारे साथ मौजूद हैं, हासिल किए हैं 40 पॉइंट्स। नेशनल स्कूल से हमारे साथ मौजूद हैं जैनुल आबिदीन, मगर स्कोर इनका है 0 पॉइंट। अल्लाहु अकबर। मोहम्मद अब्दुल्ला पाक शाहीन कैम्ब्रिज स्कूल से हमारे साथ मौजूद हैं, इनका भी स्कोर है 0 पॉइंट। अल्लाहु अकबर। कोई बात नहीं, दिल छोटा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आगे अभी राउंड मजीद बाकी हैं और अगला राउंड तो ऐसा है जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा नंबर गेन कर सकते हैं। ये आपको बॉल पिट नजर आ रही है जी। इस बॉल पिट के अंदर हमने हाइड कर रखे हैं बहुत सारे कार्ड जिन पर नंबर लिखा है और मेरे पास उन नंबरों से रिलेटेड सवालात मौजूद हैं। आपने ज्यादा से ज्यादा कार्ड गेन करने हैं। जिसके पास जितने ज्यादा कार्ड्स होंगे उसके पास उतने ज्यादा चांसेस होंगे सवालात के जवाबात देने के। किस किसने पार्टिसिपेट करना है इसमें? मैंने। चलें जी, सबने करना है तो सारे ही बच्चे आ जाएंगे बॉल पिट की तरफ। 30 सेकंड्स का टाइम होगा आपके पास और 30 सेकंड्स में जिसके पास जितने ज्यादा कार्ड्स होंगे उसके पास उतने ज्यादा चांसेस होंगे सवालात के जवाबात देने के। सारे रेडी हैं? जी। आपका 30 सेकंड का वक्त शुरू होता है अब। ध्यान से, किसी से छीनेंगे नहीं। बॉल्स गिरे ना जमीन पर, इसका ख्याल रखें। नाजरीन, अगर आप हमें सोशल मीडिया पर देख रहे हैं तो हमारे प्रोग्राम के बारे में कमेंट जरूर दीजिए और अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। 10 सेकंड रह गए हैं। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 स्टॉप। टाइम इज ओवर।
जी जनाब, टाइम पूरा हो चुका है। बढ़ेंगे अपने अपने पोडियम्स की तरफ और हमें बताएंगे किसने कितने कार्ड्स हासिल किए हैं। सबसे पहले गामिद से बात की जाएगी। द इनोवेटिव स्कूल से हमारे साथ मौजूद है गामिद। जी गामिद, कितने कार्ड्स हैं? ओनली वन। कार्ड नंबर शो करेंगे कैमरे के सामने। 9 नंबर। और 9 नंबर पर मेरे पास सवाल है। आपने बताना है नवासा रसूल हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मुहर्रम शरीफ की किस तारीख को शहीद हुए? 13। नहीं जनाब, गलती हुई है। किस तारीख को शहीद हुए? सब मिलकर जवाब देंगे। 10 मुहर्रम। 10 मुहर्रमुल हराम को। बहुत आसान जवाब था जिसमें आप नंबर नहीं हासिल कर सके। 10 नंबर माइनस होंगे गामिद के। अल्लाहु अकबर। बारी है मोहम्मद मुईज की। मुईज, हाउ मेनी कार्ड्स यू हैव? 2 कार्ड्स। शो मी वन बाय वन। कार्ड नंबर 2 नंबर पर सवाल है। कयामत के दिन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम कितने हजार फरिश्तों की जुर्मट में अपनी कब्र अनवर से बाहर तशरीफ लाएंगे? 70,000। 70,000। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जी नेक्स्ट कार्ड। 11। कार्ड नंबर 11 नंबर पर सवाल है। हदीस पाक में हुर्मत वाले महीनों की कितनी तादाद बयान हुई? 4। हुर्मत वाले महीने 4 हैं। जुल्कादा, जुल्हिज्जा, मुहर्रम और रजब। जवाब दुरुस्त दिया है। जी बारी है अब्दुल हादी की। अब्दुल हादी, कितने कार्ड्स हैं? नंबर 2 कार्ड्स। शो मी वन बाय वन। कार्ड नंबर 4 नंबर पर सवाल है। हमारे नबी सबसे आखिरी नबी इस जुमले में कितने हुरूफ हैं? 19। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जी अगला कार्ड। 18। कार्ड नंबर 18। चलें जी। जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर एक बार दुरूद पाक पढ़े, अल्लाह पाक उसके नामाए आमाल में कितनी नेकियां लिखता है? 10 नेकियां। जवाब दुरुस्त दिया है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बारी है जुनैद की। जुनैद, कितने कार्ड्स हैं आपके पास? 3 कार्ड्स। माशाल्लाह। शो मी वन बाय वन। कार्ड नंबर 1। सूरह तौबा की किस आयत नंबर में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रऊफुर रहीम फरमाया गया? 40वीं आयत। नहीं जनाब, ये सवाल का जवाब तो आपने कुरान पाक की आयत सुनाकर हमें देना चाहिए। सूरह तौबा की आयत नंबर है 128। गलती हुई है। 10 नंबर माइनस होंगे। अगला कार्ड नंबर 6। कार्ड नंबर 6। गज़वा बदर में शहीद होने वाले सहाबा इकराम में से मुहाजिर सहाबा कितने थे? 6। जवाब दुरुस्त दिया है। अगला कार्ड 16। कार्ड नंबर 16। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम की तादाद कितनी है? 70,000। गलती हुई है। तकरीबन 1,24,000 तकरीबन कहेंगे। गलती हुई है। 10 नंबर माइनस करेंगे। चलें जी, 3 कार्ड थे और जिसमें से आपने सिर्फ 10 नंबर हासिल किए। बारी है ज़ैनुल आबिदीन की। ज़ैनुल आबिदीन, कितने कार्ड्स हैं आपके पास? 4 कार्ड्स। शो करें बारी बारी। 3। कार्ड नंबर 3 नंबर पर सवाल है। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी शहजादी हजरत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से किस सन हिजरी में हुई? 11 सन हिजरी में। सन 2 सन हिजरी। गलती हुई है। 10 नंबर माइनस होंगे। अगला कार्ड नंबर 10। कार्ड नंबर 10। सूरह कलम की किस आयत नंबर में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खुल्क़े अज़ीम का जिक्र है? नहीं पता जी। और कोई जवाब दे सकता है? सूरह कलम की आयत नंबर है 4 जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खल्क़े अज़ीम का जिक्र है। गलती कहेंगे। 10 नंबर माइनस होंगे। अगला कार्ड नंबर 12। कार्ड नंबर 12। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कितनी बार आजान दी? एक बार। एक बार। जवाब दुरुस्त दिया है। जी अगला कार्ड नंबर 17। कार्ड नंबर 17। अगर इसमें भी नंबर ले लेते हैं तो फिर स्कोर 0 होगा, यानी आपका स्कोर बराबर होगा, वरना तो माइनस में जाएंगे। 17 नंबर पर मेरे पास सवाल है। वुजू में कितनी बार चेहरा धोना सुन्नत है? 3 बार। 3 बार। जवाब दुरुस्त दिया है। मोहम्मद अब्दुल्ला, कितने कार्ड्स हैं आपके पास? 1। ओनली 1। चलें जी, कार्ड नंबर आपने शो किया 15। अगर हम रोजाना 313 बार नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ें तो बताएं कि 30 दिन में हमारे कितने दुरूद पाक हो जाएंगे? 939। 939 नहीं होते भाई, 9390 होते हैं।
एक सिफर लगाना आप भूल गए, मगर इस सिफर की बहुत बड़ी कीमत है। गलती काउंट की जाएगी, 10 नंबर माइनस कर दिए जाएंगे। इसी के साथ हमारा दूसरा राउंड भी कंप्लीट हुआ। आइए आपको दिखाते हैं स्कोर बोर्ड और जानते हैं कौन कहां खड़ा है। दूसरे राउंड में गामिद ने हासिल किए हैं -10, इनका टोटल स्कोर हो गया -20। अल्लाह अकबर। दूसरे राउंड में मुईज ने हासिल किए 20 पॉइंट्स और इनका टोटल स्कोर हुआ 60 पॉइंट्स। अब्दुल हादी ने दूसरे राउंड में हासिल किए हैं 20 पॉइंट्स और इनका टोटल स्कोर हुआ 20 पॉइंट्स। जुनैद रजा ने दूसरे राउंड में -10 हासिल किए हैं और इनका टोटल स्कोर हुआ 30 पॉइंट्स। ज़ैनुल आबिदीन का दूसरे राउंड का स्कोर भी रहा 0 पॉइंट और इनका टोटल स्कोर भी है 0 पॉइंट। अल्लाहु अकबर। मोहम्मद अब्दुल्ला ने दूसरे राउंड में हासिल किए हैं -10, इनका टोटल स्कोर हुआ -10। अल्लाहु अकबर। बारी है तीसरे राउंड की, मगर याद रहे तीसरे राउंड के आखिर में जिसका स्कोर ज्यादा माइनस होगा या सबसे कम होगा वो हमारे प्रोग्राम से रुखसत हो जाएगा, मुकाबले से आउट हो जाएगा। तो शुरू करेंगे तीसरा राउंड। तीसरे राउंड में हम आपको अल्फाज दिखाएंगे और उन अल्फाज को याद करके आपके सामने एक सवाल रखा जाएगा जिसमें से एक वर्ड मिस होगा, आपने उसको तलाश करना होगा। अगर सही तलाश किया तो आपको दिए जाएंगे 10 पॉइंट्स और अगर गलती करेंगे तो स्कोर होगा -10। तो चलते हैं राउंड 3 की तरफ। सबसे पहला सवाल होगा गामिद से। गामिद के लिए अल्फाज देखेंगे स्क्रीन पर। रहमत, निदा, करम, अर्ज, दुआ। उम्मीद है आपने अल्फाज याद कर लिए होंगे, जहन नशीन कर लिए होंगे। सवाल दिखा दीजिए। ए सब्ज गुंबद वाले मंजूर क्या करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। दुआ। आपने कहा दुआ, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। चलें जी, अगला सवाल होगा मोहम्मद मुईज से, मगर उससे पहले अल्फाज देखेंगे स्क्रीन पर। सहारा, जाला, तारा, मिनारा। चलें जी, अल्फाज उम्मीद है याद किए होंगे मुईज ने। सवाल दिखाइए। आंखों का क्या है? तारा। जी, तारा। आपने कहा तारा, जवाब देखेंगे स्क्रीन पर। आंखों का तारा, नामे मोहम्मद, दिल का उजाला, नामे मोहम्मद, पूछेगा मौला है लाया क्या क्या, मैं ये कहूंगा नामे मोहम्मद। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। जी, अब्दुल हादी के लिए अल्फाज देखेंगे मगर स्क्रीन पर। परिंदे, चांद, फूल, तारे। जी, सवाल देखिए। क्या खबर कितने खिले छुप। तारे। आपने कहा तारे, सवाल कंप्लीट नहीं पड़ा और कह दिया। देखते हैं स्क्रीन पर जवाब क्या है। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। जुनैद के लिए अल्फाज देखेंगे स्क्रीन पर। जड़, शाख, कली, बुनियाद। जी, सवाल दिखाइए। हया ईमान की एक क्या है? शाख। आपने कहा शाख, जवाब दिखाइए। हया ईमान की एक शाख है, जवाब दुरुस्त दिया है। सुभान अल्लाह। जी, ज़ैनुल आबिदीन के लिए अल्फाज देखेंगे स्क्रीन पर। जख्म, करम, भरम, हरम। क्या बात है जनाब, सवाल दिखाइए। जिधर देखूं मदीने का क्या हो? हरम। काश ऐसा हो जाए, एक काश ऐसा हो जाए। जी, जवाब दिखाइए। जिधर देखूं मदीने का हरम हो। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है। सुभान अल्लाह। करम ऐसा करम शहंशाह उमम हो। आखिरी अल्फाज देखेंगे मोहम्मद अब्दुल्ला के लिए। कली, गली, लड़ी, फली। सवाल दिखाइए जी। ए काश तसव्वुर में मदीने की क्या हो? गली। आपने कहा गली, इस सवाल का जवाब देखिए क्या है। ए काश तसव्वुर में मदीने की गली हो। क्या बात है, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। अरे जनाब, कुछ स्कोर में आप लोगों ने इजाफा किया है। क्या ख्याल है कि एक और सवाल हो जाए? जी। अरे गामिद के लिए अल्फाज दिखाइए जी फिर। खुशी के मारे सब सितारे, गम के मारे राज दुलारे। सवाल दिखाइए जी। ए सबा मुस्तफा से कह देना सलाम कहते हैं। मिसिंग वर्ड क्या आएगा? गम के मारे। आपने कहा गम के मारे। देखते हैं कि जवाब क्या आता है। ए सबा मुस्तफा से कह देना गम के मारे सलाम कहते हैं। जवाब दुरुस्त दिया है। सुभान अल्लाह। मुईज के लिए अल्फाज देखेंगे स्क्रीन पर। आकिब, नासिर, आदिल, कासिम। सवाल दिखाइए। रब है मुअती ये हैं, रिज्क उसका है खिलाते ये हैं। कासिम। आपने कहा कासिम, जवाब दिखाइए जी। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। अब्दुल हादी के लिए अल्फाज देखेंगे स्क्रीन पर। फुआर, बहार, खिजा, रोशन। चले जी, सवाल भी दे दीजिए।
नूर बरसाते मीनारे सब्ज गुंबद दिल हो रोशन देख कर मीठा मदीना मरहबा। नूर बरसाते मनारे सब्ज गुंबद की, आगे मिसिंग वर्ड क्या आएगा? दिल हो रोशन देख कर मीठा मदीना मरहबा। जी बेटा जल्दी करेंगे, वक्त गुजर रहा है। रोशन। आपने कहा रोशन, देखते हैं जवाब क्या है। नहीं जनाब, गलती हुई है। नूर बरसाते मनारे सब्ज गुंबद की बहार, दिल हो रोशन देख कर मीठा मदीना मरहबा। अल्लाह जल्दी जल्दी हमें मदीने की हाजिरी नसीब फरमाए। गलती हुई है, अब्दुल हादी से 10 नंबर माइनस होंगे। अल्लाहु अकबर। बारी है जुनैद की। जुनैद के लिए अल्फाज दिखाइए जी। साइम, मुलाइम, काइम, अजाइम। जी सवाल देखें। जिसने नमाज को कायम रखा उसने अपने दीन को क्या रखा? कायम। आपने कहा कायम, देखेंगे जवाब क्या आता है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। आबिदीन के लिए एक मर्तबा फिर अल्फाज दिखाइए। चाहत, इजाबत, खलवत, साअत। जी सवाल भी दे दीजिए। खुदा को याद कर प्यारे वो क्या आने वाली है? खावत। जी खावत। नहीं जनाब, गलती हुई है, वो साअत आने वाली है। सही जवाब है। 10 नंबर माइनस कर दिए जाएंगे। अल्लाहु अकबर। मोहम्मद अब्दुल्ला के लिए अल्फाज देखेंगे। चाशनी, रोशनी, बातनी, सादगी। चलें जी सवाल भी दिखा दीजिए। आका मेरे तुम ख्वाब में आओ, मेरे घर क्या होगी? रोशनी। आपने कहा रोशनी, देखते हैं जवाब क्या है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। नाज़रीन, हमारा तीसरा राउंड का मुकाबला कंप्लीट हुआ। आइए देखते हैं और जानते हैं कौन जबर रहा और कौन ज़ेर हो गया। जी जनाब, मुकाबला एक इंटरेस्टिंग पॉइंट पर पहुंच चुका है। गामिद और ज़ैनुल आबिदीन का स्कोर सेम हो चुका है। हालांकि स्कोर 0-0 है, मगर दोनों में मुकाबला टाई हो चुका है। द इनोवेटिव स्कूल से हमारे साथ मौजूद हैं गामिद ने इस राउंड में 20 पॉइंट्स का इजाफा किया, मगर पिछला स्कोर इनका -20 था, लिहाजा इनका स्कोर हुआ 0 पॉइंट। सुभान अल्लाह। प्रोएक्टिव स्कूल से हमारे साथ मोइज मौजूद हैं। 20 पॉइंट्स का इजाफा किया है तीसरे राउंड में और इनका टोटल स्कोर हो गया 80 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। अब्दुल हादी ने इस राउंड में कोई स्कोर हासिल नहीं किया, मगर इनका स्कोर हुआ 20 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। जुनैद रजा ने इस राउंड में बनाए हैं 20 पॉइंट्स और इनका स्कोर हो गया 50 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। ज़ैनुल आबिदीन ने इस राउंड में भी कोई नंबर हासिल नहीं किए, इनका स्कोर है 0 पॉइंट। अल्लाहु अकबर। मोहम्मद अब्दुल्ला ने हासिल किए हैं 20 पॉइंट्स और इनका टोटल स्कोर हो गया 10 पॉइंट। सुभान अल्लाह। जी जनाब, गामिद और ज़ैनुल आबिदीन में मुकाबला टाई हो चुका है। वैसे आप दोनों के सामने एक एक और सवाल किया जाएगा, देखेंगे स्क्रीन पर। गामिद के लिए अल्फाज। बेचना, लगाना, देखना, रखना, बांटना। जी सवाल दिखाइए। खुशबू। लगाना सुन्नत है। आपने कहा लगाना सुन्नत है, देखते हैं जवाब क्या आता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। अगर तो अगले सवाल का जवाब ज़ैनुल आबिदीन ने दुरुस्त दे दिया तो मुकाबला एक मर्तबा फिर टाई हो जाएगा। हम एक एक और सवाल करेंगे और अगर ज़ैनुल आबिदीन ने गलती की तो फिर ज़ैनुल आबिदीन मुकाबले से बाहर हो जाएंगे। ज़ैनुल आबिदीन के लिए अल्फाज दिखाइए। फर्ज, जरूरी, सुन्नत, बुरा, लाजिम। चलें जी सवाल दिखाइए। पानी बैठकर पीना क्या है? सुन्नत। आपने कहा सुन्नत, जवाब दिखाएंगे। जवाब दुरुस्त दिया है। कमाल किया है। अभी तक 3 राउंड में 1 नंबर भी हासिल नहीं किया था, मगर मुकाबले में टाई होने के बाद यहाँ पर 10 नंबरों का इजाफा किया है। एक एक और सवाल होगा। गामिद के लिए अल्फाज देखेंगे स्क्रीन पर। मकाम, सब्र, हिल्म, शुक्र, खानदान। जी सवाल देखिए गामिद गौर से। अमामा बांधो तुम्हारा क्या बढ़ेगा? इमामा बांध तो तुम्हारा इल्म भरेगा। हिल्म बढ़ेगा। आपने कहा इल्म नहीं है बेटा, हिल्म है। हिल्म। हिल्म, ठीक है, हाँ से हिल्म था। जी जवाब दिखाइए। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। वंस अगेन बॉल आ गई है ज़ैनुल आबिदीन के कोर्ट में। ज़ैनुल आबिदीन के लिए अल्फाज दिखाएंगे, जवाब देना जरूरी होगा ज़ैनुल आबिदीन के लिए। जी गौर से देखे बेटा। तस्बीह फातिमा, तस्बीह, दुआ फातिमा, आयतुल कुर्सी, आयत करीमा। जी सवाल दिखाइए। 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ना क्या कहलाती है? आयत करीमा। आपने कहा आयत करीमा। देखते हैं जवाब क्या है। अगर तो ये जवाब गलत है नाजरीन तो ज़ैनुल आबिदीन मुकाबले से बाहर हो जाएंगे। जवाब देखेंगे स्क्रीन पर। गलती हुई है जनाब। 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ना
तस्बीह फातिमा कहलाती है। जी तो फैसला हो गया, गामिद अगले राउंड के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं और ज़ैनुल आबिदीन को हमें रुखसत करना होगा। बैठेंगे आप अपनी सीट पर और हम बढ़ेंगे अपने चौथे राउंड की तरफ। जी तो नाज़रीन, मुकाबला पहुंच चुका है चौथे राउंड में और चौथे राउंड में हमारे साथ होते हैं 5 कंटेस्टेंट्स जिनके दरमियान हमने करवाना है मुकाबला। मगर मुकाबला आगे बढ़ाने से पहले आपको बता दूं कि अब तीसरे राउंड का स्कोर हम अपने पास महफूज कर लेंगे और अब हर अगला राउंड ये फैसला करता चला जाएगा कि जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी वही हमारे नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई करेगा। लिहाजा आपने बड़े ही ध्यान के साथ आगे चलना होगा क्योंकि हर राउंड के आखिर में ये फैसला होगा कि किसने आगे जाना है और किसने हमें छोड़कर चले जाना है। चौथे राउंड में होना क्या है आपको बता दें। चौथे राउंड का मुकाबला इस तरीके से आगे बढ़ेगा कि हम एक सवाल करेंगे मगर जवाब देने के लिए बच्चों ने बजर बजानी होगी। जो पहले बजर बजाएगा उससे जवाब लिया जाएगा मगर जवाब देने के लिए आपको 3 ऑप्शंस दिए जाएंगे क्योंकि हमारे चौथे राउंड का नाम है चूज द करेक्ट आंसर। तो आइए शुरू करते हैं हमारा चौथा राउंड। चौथे राउंड का पहला सवाल, प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हिब्रुल उम्मा यानी उम्मत के बड़े आलिम का लक़ब किसे अता फरमाया? बजर बजाई है मोहम्मद अब्दुल्ला ने। जवाब देने के लिए ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1 हजरत खालिद बिन वलीद, ऑप्शन 2 हजरत मुआज बिन जबल, ऑप्शन 3 हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास। ऑप्शन 3। आपने कहा ऑप्शन 3, हालांकि आपके पास 2 मजीद चॉइसेस मौजूद थी मगर आपने तीसरा ऑप्शन यानी हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास का इंतखाब किया और आपका इंतखाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी अगला सवाल जरा गौर से सुनेंगे। तामीर मस्जिद नबी में एक ईंट अपनी तरफ से और दूसरी ईंट नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ से लाने वाले सहाबी का नाम बताएं। गामिद, जवाब देने के लिए ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन 1 हजरत अम्मार बिन यासिर, ऑप्शन 2 हजरत तलहा, ऑप्शन 3 हजरत जुबैर बिन अव्वाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम। ऑप्शन 3। आपने कहा ऑप्शन 3, गलती हुई है। सही जवाब है ऑप्शन 1 हजरत अम्मार बिन यासिर। 10 नंबर माइनस कर दिए जाएंगे। अल्लाहु अकबर। गौर से सुनेंगे। मेराज की रात नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दूसरे आसमान पर हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अलावा और किस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हुई थी? बजर बजाई है जुनैद ने। जवाब देने के लिए ऑप्शन होंगे आपके पास। ऑप्शन 1 हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम, ऑप्शन 2 हजरत यहया अलैहिस्सलाम, ऑप्शन 3 हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। हजरत यहया अलैहिस्सलाम। आपने कहा ऑप्शन 2 हजरत यहया अलैहिस्सलाम और आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। चलें जी अगला सवाल सुनिए। किस फरिश्ते ने हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मेराज की खुशखबरी सुनाई थी और फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ उस सफर में भी गए थे? जी बजर बजाई है मुईज ने। ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन 1 हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम, ऑप्शन 2 हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम, ऑप्शन 3 हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, जिब्राइल अलैहिस्सलाम। ऑप्शन 3 हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। जवाब दुरुस्त दिया है। सुभान अल्लाह। वो कौन से अजीम गुलाम थे जो प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए तो उनके इस्लाम लाने की वजह से उनका मालिक उन पर और जुल्म करता था? गामिद, जवाब देने के लिए ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1 हजरत बिलाल, ऑप्शन 2 हजरत खालिद बिन वलीद, ऑप्शन 3 हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम। ऑप्शन 1 हजरत बिलाल। जवाब दुरुस्त दिया है। सुभान अल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक के बाद दूसरी बेटी किस सहाबी के निकाह में आई? बजर बजाई है जुनैद ने। जवाब देने के लिए ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1 हजरत उस्मान गनी, ऑप्शन 2 हजरत सअद बिन अबी वक्कास, ऑप्शन 3 हजरत अली उल मुर्तजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम। ऑप्शन नंबर 3। आपने कहा ऑप्शन नंबर 3 हजरत अली उल मुर्तजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। गलती हुई है जनाब। सही जवाब है हजरत उस्मान गनी। ज़ुन्नूरैन कहलाए, 2 नूर वाले कहलाए। आला हजरत फरमाते हैं नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का, हो मुबारक तुमको ज़ुन्नूरैन जोड़ा नूर का। गलती हुई है जुनैद से। 10 नंबर माइनस कर दिए जाएंगे। अल्लाहु अकबर। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये दुआ, ए अल्लाह इन्हें हिदायत देने वाला हिदायत याफ्ता बना और इनके जरिए लोगों को हिदायत दे, किस सहाबी रसूल के लिए है? कामिद, जवाब देने के लिए ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1 हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, ऑप्शन 2 हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ऑप्शन 3 हजरत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। ऑप्शन नंबर 2।
آپ نے کہا آپشن 2 حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست دیا ہے. کس صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بارگاہ رسالت سے سید الانصار کا خطاب ملا؟ عبداللہ. جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں. آپشن 1 حضرت ابی بن کعب، آپشن 2 حضرت بلال، آپشن 3 حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہم. آپشن 2. آپ نے کہا آپشن 2 یعنی حضرت بلال. غلطی ہوئی ہے. صحیح جواب ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 10 نمبر مائنس ہو جائیں گے. سیکنڈ لاسٹ کوشچن. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کس نواسے کو زہر دے کر شہید کیا گیا؟ معیز. جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں. آپشن 1 حضرت عبداللہ، آپشن 2 امام حسین، آپشن 3 امام حسن. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام حسن رضی نہیں کہیں گے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست دے دیا ہے. بہت سے صحابی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی موجودگی میں بھی فتاوا دیا کرتے تھے. عبداللہ. جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں. آپشن 1 حضرت امام حسن، آپشن 2 حضرت حسن بصری، آپشن 3 حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپشن 1. آپ نے کہا آپشن 1 غلطی ہوئی ہے. صحیح جواب ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 10 نمبر مزید مائنس ہو جائیں گے. اس کے ساتھ ہمارا یہ کمپٹیشن بھی پورا ہوا. دیکھیں گے چوتھے راؤنڈ کے آخر میں کون زبر ہوا اور کون زیر ہوا. دی انوویٹو اسکول سے غامد ہمارے ساتھ موجود ہیں. چوتھے راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں 10 پوائنٹس. سبحان اللہ. اسکول سے محمد معیز حاصل کیے ہیں چوتھے راؤنڈ میں 20 پوائنٹس. عبد الہادی دی انوویٹو اسکول سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. کوئی اسکور نہیں بنایا. ان کا اسکور ہے 0 پوائنٹ. جنید رضا مدرسۃ المدینہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. چوتھے راؤنڈ میں کوئی اسکور نہیں بنایا. ان کا اسکور ہے 0 پوائنٹ. مگر محمد عبداللہ پاک شاہین کیمبرج اسکول سے آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آپ نے چوتھے راؤنڈ میں اسکور بنایا نہیں بلکہ مائنس کیا ہے اور آپ کا اسکور ہے -10. لہذا عبداللہ کو رخصت ہونا ہوگا. اب یہ پیارا سا تحفہ آپ کے ساتھ جائے گا. آپ چلیں گے اپنی سیٹ کی طرف اور ہم بڑھیں گے اپنے 5ویں راؤنڈ کی طرف. 5واں راؤنڈ ہمارا بہت ہی خوبصورت راؤنڈ ہوتا ہے. اس راؤنڈ میں آپ کے سامنے ایک بات رکھی جائے گی. آپ کے پاس 2 سوئچز لگے ہوئے ہیں، گرین اور ریڈ. اگر آپ کے نزدیک یہ بات صحیح ہے آپ نے گرین سوئچ کا استعمال کرنا ہے اور اگر آپ کے نزدیک وہ بات غلط ہے تو آپ نے ریڈ سوئچ کا استعمال کرنا ہے. یاد رہے اس راؤنڈ میں آپ کے پاس چانسز ہیں کہ آپ اپنے اسکور میں 120 پوائنٹس کا اضافہ کر سکتے ہیں کیونکہ ہر بات پر ہم آپ کو مارکس دیں گے +10 اور -10. لہٰذا آپ کوشش کریں کہ غور سے سن کر صحیح فیصلہ کریں. آئیے شروع کرتے ہیں 5واں راؤنڈ. 5ویں راؤنڈ کی پہلی بات. حدیث پاک کے مطابق اللہ پاک مطیع ہے یعنی عطا فرمانے والا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام قاسم یعنی تقسیم فرمانے والے ہیں. جنید نے ریڈ لائٹ کا استعمال کیا اور باقی تینوں نے گرین لائٹ کا استعمال کیا. تینوں کا جواب درست ہے. جنید سے غلطی ہوئی ہے. 10 نمبر مائنس ہو جائیں گے. اگلی بات ذرا غور سے سنیں بیٹا. حدیث پاک میں سونے چاندی کے برتن میں کھانے پینے سے منع کیا گیا. عبد الہادی نے ریڈ لائٹ کا استعمال کیا، باقی تینوں نے گرین لائٹ کا استعمال کیا. عبد الہادی سے غلطی ہوئی ہے. باقی تینوں نے 10 نمبر حاصل کیے ہیں. سبحان اللہ. حدیث پاک کے مطابق امامہ شریف باندھنے سے عزت میں اضافہ ہوتا ہے. 3 بچوں نے ریڈ لائٹ کا استعمال کیا. عبد الہادی نے ایک مرتبہ پھر اپنا ڈیسیجن لیا، گرین لائٹ کا استعمال کیا اور عبد الہادی سے غلطی ہوئی ہے کیونکہ بردباری یعنی قوت برداشت میں اضافہ ہوتا ہے. حدیث پاک کے مطابق جب کوئی مہمان کسی کے یہاں آتا ہے تو اپنا رزق لے کر آتا ہے. چاروں نے جواب بالکل درست دیا ہے. سبحان اللہ. حدیث پاک کے مطابق امامہ عرب کا تاج ہے. غامد نے ریڈ لائٹ کا استعمال کیا، باقی تینوں نے گرین لائٹ کا استعمال کیا. غامد سے غلطی ہوئی ہے. باقی تینوں کا اسکور 10 پوائنٹس پلس کیا جائے گا. سبحان اللہ. حدیث پاک کے مطابق اتوار کو نہانا گناہوں کو دھو ڈالتا ہے. نہیں جناب، یہ بات غلط تھی اور عبد الہادی نے فیصلہ لیا یہ بات درست ہے. عبد الہادی سے غلطی ہوئی ہے. حدیث پاک کے مطابق جمعہ کو نہانا گناہوں کو دھو ڈالتا ہے. اگلی بات، حدیث پاک کے مطابق روزہ رکھنے سے ذہانت اچھی ہو جاتی ہے. چاروں نے ریڈ لائٹ کا استعمال کیا اور سب کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. حدیث پاک کے مطابق روزہ رکھنے سے ذہانت اچھی نہیں بلکہ صحت اچھی ہوتی ہے. کھانا کھانے سے پہلے اور بعد کھانے کا وضو کرنے سے گھر میں برکت ہوتی ہے.
سب نے جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. مسلمان جب تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں. چاروں نے جواب بالکل درست دیا ہے. سبحان اللہ. حدیث پاک کے مطابق رمضان کا مہینہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مہینہ ہے. چاروں نے جواب بالکل صحیح دے دیا. سبحان اللہ. کیونکہ آقا کا مہینہ رمضان نہیں بلکہ شعبان کا مہینہ ہے. چاروں نے جواب درست دیا ہے. سبحان اللہ. فرمان رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مطابق غصہ نہ کرنے والے کو دولت کی خوشخبری دی گئی ہے. جی جناب عبد الہادی نے گرین لائٹ کا استعمال کیا, باقی تینوں نے ریڈ لائٹ کا استعمال کیا. عبد الہادی کا ڈیسیجن بالکل غلط ہے کیونکہ یہ بات بالکل غلط ہے. غصہ نہ کرنے سے دولت کی نہیں بلکہ جنت کی خوشخبری دی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے. حیا ایمان کی وجہ سے ہے. جواب دیجئے. حیا ایمان کی وجہ سے ہے. جنید اور عبد الہادی نے ریڈ لائٹ کا استعمال کیا, دونوں سے غلطی ہوئی ہے. غامد اور معیز کا جواب بالکل درست ہے. 10-10 نمبر دونوں کو دیے جائیں گے. سبحان اللہ. اسی کے ساتھ ہمارا یہ راؤنڈ کمپلیٹ ہوا. آئیے دکھاتے ہیں آپ کو اسکور اور جانتے ہیں کون ہمارے ساتھ نیکسٹ راؤنڈ میں ہوگا اور کون ہمیں چھوڑ کر جا رہا ہے. جی ناظرین, غامد کا اسکور ہے 110. سبحان اللہ. محمد معیز کا اسکور ہوا 120 پوائنٹس سبحان اللہ. اور عبد الہادی کا اسکور ہوا 70 پوائنٹس. سبحان اللہ. جنید کا اسکور ہوا 80 پوائنٹس. سبحان اللہ. عبد الہادی بھائی کو رخصت کرنا ہوگا. عبد الہادی بھائی آئیں گے اور اپنا تحفہ وصول کریں گے. ماشاءاللہ آ جائیں. ماشاءاللہ چلیں جی, یہ سیدھے ہاتھ سے لیں گے اور بیٹھیں گے آپ اپنی سیٹ پر اور ہم چلیں گے اپنے چھٹے راؤنڈ کی طرف. جی ناظرین, اب باری ہے ہمارے چھٹے راؤنڈ کی اور چھٹے راؤنڈ میں ہوتی ہے بڑی ہی خوبصورت سی ایکٹیویٹی کیونکہ اب ہمارے ساتھ کنٹیسٹنٹس جو موجود ہیں ان کی تعداد ہے 3 اور ان تینوں کے درمیان ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہمارے 7ویں یعنی فائنل راؤنڈ میں کون کون ہمارے ساتھ ہوگا. آپ تینوں کے لیے تختیاں لگائی جائیں گی اور آپ تینوں نے باری باری ہمیں پرچی نکال کر بتانا ہے کہ آپ نے کن تختیوں کو ترتیب درست طریقے سے دینا ہے. ہر تختی کو درست جگہ پر لگانے کے ہم آپ کو دیں گے 10 پوائنٹس. شروع کریں گے غامد سے. غامد اپنے لیے پرچی نکالیں گے کہ آپ نے کن تختیوں کو ترتیب دینا ہے. 60 سیکنڈ کا ٹائم ہوگا آپ کے پاس. انبیاء کے ناموں کی تختیوں کو ترتیب دیں گے. 60 سیکنڈ میں آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. چلیں جی دیکھتے ہیں کتنی تختیاں غامد صحیح جگہ پر رکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. ناظرین اپنا بھی امتحان ضرور لیا کیجئے اور دیکھیے, چیک کریں اپنے آپ کو کہ ہمیں کتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سیکوینس سے یاد ہیں. وقت تیزی سے گزر رہا ہے, جلدی کریں گے. جلدی کریں گے بیٹا. جی معیز تیاری ہے؟ جی. کس چیز کی بیسٹ تیاری ہے؟ سپاہوں کے نام کی. سپاروں کے نام کی. چلیں دعا کریں پھر آپ سپاروں کے نام آپ کے نصیب میں آ جائیں. جلدی کریں گے جی, ٹائم روکیں گے جناب. چیک کر لیا آپ نے؟ آپ کانفیڈنٹ ہیں؟ 2-3 غلط ہوں گے. 2-3 غلط ہوں گے. چلیں ہم چیک کر لیتے ہیں کتنے غلط. پہلے نمبر پر حضرت شمویل علیہ السلام, صحیح. حضرت داؤد علیہ السلام, بالکل صحیح. حضرت سلیمان علیہ السلام, بالکل صحیح. حضرت الیاس علیہ السلام, بالکل صحیح. 5ویں نمبر پر غلطی ہوئی ہے. 6 نمبر پر غلطی ہوئی ہے. 7ویں نمبر پر حضرت عزیر علیہ السلام, یہ بھی غلط. حضرت دانیال علیہ السلام 8ویں نمبر پر درست. حضرت زکریا علیہ السلام, یہ بھی غلط. 4. 10ویں نمبر پر یہ بھی غلط. 5 غلطیاں ہوئی ہیں اور 5 تختیوں کو صحیح جگہ پر لگایا ہے. جی جناب 50 پوائنٹس حاصل کیے ہیں غامد نے. سبحان اللہ. باری ہے محمد معیز کی. معیز آئیں گے اور اپنے لیے پرچی نکالیں گے. چلیں جی, ایک پرچی نکال دی ہے اسماء الحسنی. محمد معیز نے اور پرچی نکلی ہے اسماء الحسنی کی. آپ کا 60 سیکنڈ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. جی بتا رہے تھے تیاری ہے قرآن پاک کے پاروں کی اور پرچی نکل آئی ہے اسماء الحسنی کی. ناظرین اگر آپ ہمیں سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں تو پروگرام کو لائک بھی کیجئے, شیئر بھی کیجئے اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے. اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بالکل نہ بھولیے گا. جلدی کریں گے بیٹا, وقت گزر رہا ہے. اللہ پاک کے مقدس ناموں کی تختیوں کو درست جگہ پر ترتیب دینا ہے. وقت تیزی سے گزر رہا ہے, جلدی کریں گے.
जनाब। हामिद, क्या लगता है कितनी तख्तियों को लगा पाएंगे अपनी जगह पर दुरुस्त? सही सारे। सारे दुरुस्त लगाएंगे? चलें जी, हामिद भाई का कहना है सारी तख्तियों को दुरुस्त जगह पर रखने में कामयाब हो जाएंगे जी। टाइम स्टॉप करेंगे, 10 सेकंड्स बाकी हैं। पहले नंबर पर अल कहार, बिल्कुल सही। अल वहाब, बिल्कुल सही। अल रज़ाक, सही। अल फताह, बिल्कुल सही। 5वें नंबर पर अल अलीम, अल काबिद, अल बासित, अल खाफिद, अल राफे, अल मुईज। 10 की 10 तख्तियों को दुरुस्त जगह पर लगाया है। माशाअल्लाह। बारी है जुनैद रजा की, और जुनैद रजा के लिए भी आसानी होगा क्योंकि 18 पारों के हाफिज हैं। आपका 60 सेकंड का टाइम शुरू होता है। अब जल्दी करेंगे। पूछेंगे हम तुमसे कुछ सवाल, फिर देखते हैं कौन देगा उसका जवाब। 18 सेकंड्स गुजर चुके हैं। डन। और डन किया है, और जुनैद ने तो कमाल कर दिया है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाई है। अभी 18 सेकंड गुजरे थे और इस टाइमर स्टॉप करवा दिया है। चेक करते हैं कितने पारों की तख्तियों को दुरुस्त जगह पर लगाया है। पहले नंबर पर उतलुमा उहिया, बिल्कुल सही। वमन यक़नुत, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वमन अज़लमु, बिल्कुल सही। इलैहि युरद्दु, ये भी सही। हामीम, बिल्कुल सही। क़ाल फमा ख़त्बुकुम, बिल्कुल सही। क़द समिअ अल्लाह, बिल्कुल सही। तबारकल्लज़ी, बिल्कुल सही। और अम्मा 10 की 10 तख्तियों को दुरुस्त जगह पर लगाकर 100 पॉइंट हासिल किए हैं। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। इसी के साथ नाज़रीन फैसला हुआ, हामिद भाई को रुखसत होना होगा। ज़ेरो ज़बर। ये प्यारा सा तोहफा आपके साथ जाएगा। माशाल्लाह, अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई आपने। बैठेंगे अपनी सीट की तरफ और हम बढ़ेंगे अपने फाइनल राउंड की तरफ। ज़ेरो ज़बर। नाजरीन, मुकाबला बराबर बराबर का है और हम पहुंच चुके हैं अपने फाइनल राउंड में। एक तरफ है मोहम्मद मुईज, और मोहम्मद मुईज का ताल्लुक है प्रोएक्टिव स्कूलिंग सिस्टम से, और दूसरी तरफ है मोहम्मद जुनैद जिनका ताल्लुक है मदरसतुल मदीना से। आप दोनों को फाइनल राउंड में पहुंचने की सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत बहुत खैर मुबारक। माशाअल्लाह। आप दोनों से फाइनल राउंड में भी सवालात होंगे, मगर इस बार सवालात कहां से होंगे ये आप फैसला करेंगे, क्योंकि मेरे पास 2 बॉक्सेस रखे हैं। एक पर लिखा है नबी पाक की मक्की जिंदगी, और दूसरे पर लिखा है नबी पाक की मदनी जिंदगी। सवाल सुनकर डायरेक्ट जवाब देने पर आपको हम देंगे 10 पॉइंट्स, और अगर आप ऑप्शन लेकर जवाब देंगे तो आपको दिए जाएंगे 5 पॉइंट्स, और अगर दोनों सूरतों में आपने गलती की तो आपके स्कोर में से -10 कर दिया जाएगा। शुरू करेंगे मोहम्मद मुईज से। पहले ऑप्शन चूज करेंगे मक्की जिंदगी और मदनी जिंदगी। मक्की जिंदगी। मक्की जिंदगी जी। पहला सवाल नबी पाक की मक्की जिंदगी से मोहम्मद मुईज आपके लिए। इब्तिदा इस्लाम में किस शख्सियत के ईमान लाने से इस्लाम को कुव्वत मिली? उमर फारूक। आपने बगैर ऑप्शन के जवाब दिया और जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। 10 नंबर हासिल कर लिए हैं मुईज ने। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। बारी है मोहम्मद जुनैद की। मोहम्मद जुनैद के लिए ऑप्शंस ओपन हैं, मक्की जिंदगी और मदनी जिंदगी। मदनी जिंदगी। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मदनी जिंदगी। मदनी जिंदगी से पहला सवाल आपके लिए। जंग खैबर में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अलम किसे अता फरमाया था? अलम हजरत अली। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। बराबर का मुकाबला है, कोई पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। बारी है मोहम्मद मुईज की। मोहम्मद मुईज ऑप्शन चूज करेंगे मक्की और मदनी जिंदगी। मक्की। मक्की जिंदगी। मक्की जिंदगी से अगला सवाल आपके लिए। शौबे अबी तालिब में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अपने साथियों के साथ तशरीफ ले जाने वाला वाकया नबूवत के कौन से साल पेश आया था? नबूवत के 7वें साल। आपने कहा नबूवत के 7वें साल। अनबिलीवेबल, कैसे जवाब दे दिया आपने? तैयारी की थी इसकी? चलें जी, तैयारी कर कर आए हैं और जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। अगला सवाल होगा जुनैद से। मक्की जिंदगी और मदनी जिंदगी। मदनी जिंदगी। मदनी जिंदगी। ग़ज़वा खैबर में मौला कायनात मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने किस ताकतवर काफिर को शिकस्त दी थी? थोड़ा सा मुश्किल सवाल आ गया जनाब। अगर चाहते हैं तो जवाब दें, और अगर चाहते हैं तो ऑप्शन ले लें। ऑप्शन। ऑप्शन 1 अबू जहल, ऑप्शन 2 मरहब। 1। आपने कहा ऑप्शन 1 अबू जहल, लेकिन आपका जवाब गलत हो गया है। सही जवाब था मरहब। 10 नंबर माइनस हो जाएंगे। अल्लाहु अकबर। एक तरफ हैं 20 पॉइंट्स और दूसरी तरफ हो गए
0 पॉइंट। मोहम्मद मोइज से सवाल होगा। मक्की। मक्की जिंदगी, ऑप्शन चूज किया मक्की जिंदगी। आपने बताना यह है मक्का मुकर्रमा के अलावा और किस मकाम के लोगों ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तबलीग दीन के सिलसिले में तकलीफ पहुंचाई? ताइफ। आपने जवाब दिया ताइफ, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। क्या बात है जनाब। बारी है जुनैद की। जुनैद के लिए ऑप्शंस ओपन हैं, मक्की जिंदगी और मदनी जिंदगी। मदनी। मदनी जिंदगी, मक्की जिंदगी तरफ भी जा सकते हो आप। सवाल आपसे यह है अजान की शुरुआत किस सने हिजरी में हुई? ऑप्शन 1 पहली हिजरी, ऑप्शन 2 तीसरी हिजरी। तीसरी हिजरी। अनबिलीवेबल, अल्लाहु अकबर। ऑप्शन लेने के बावजूद आप जवाब गलत दे गए। अजान की इब्तिदा पहली हिजरी में हुई थी। जुनैद के 10 पॉइंट्स माइनस कर दिए जाएंगे। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। बारी है मुईज की। मक्की जिंदगी और मदनी जिंदगी। मदनी। मदनी जिंदगी, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मदनी जिंदगी। आपने बताना यह है कि तीसरी हिजरी में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किस खातून से निकाह फरमाया? ऑप्शंस। ऑप्शन 1 बीबी आयशा, ऑप्शन 2 बीबी हफ्सा। सोच रहे हैं मुईज, इस बार थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया है। बीबी हफ्सा। आपने जवाब दिया बीबी हफ्सा। आपका जवाब महफूज कर लेते हैं। पहले सवाल करते हैं जुनैद से। जी जुनैद, मक्की जिंदगी और मदनी जिंदगी। मक्की जिंदगी। मोहम्मद जुनैद ने इस बार इंतखाब किया है मक्की जिंदगी का। आपके लिए सवाल है मक्की जिंदगी से। मैं नबी हूं, ये झूठ नहीं है। मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं। किस जंग के मौके पर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया था? जंगे बदर। अगर ये जवाब ना देते तो फिर और क्या जवाब देते? जंगे फुजार। नहीं जनाब, दोनों जवाब आपके गलत हैं, क्योंकि इसका सही जवाब है गज़वाए हुनैन। गलती हुई है जुनैद से। और नाजरीन आपको बताऊं कि मुईज ने जो पिछला जवाब दिया था वो जवाब था बीबी हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त था। सुभान अल्लाह। और आज का मुकाबला मुईज जीत चुके हैं। ज़ेरो ज़बर माशाअल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो मुईज भाई आपको। मुईज भाई अपने हाथों से जुनैद भाई को ये प्यारा सा तोहफा देंगे। दोनों बेटे आ जाएं करीब। माशाअल्लाह, यहाँ पर आ जाओ। माशाअल्लाह, मुईज अपने हाथों से जुनैद भाई को तोहफा देंगे। माशाअल्लाह, जुनैद भाई ने अच्छी कोशिश की। माशाअल्लाह, अच्छी तैयारी थी आपकी, मगर आखिरी राउंड में थोड़ी कमजोर तैयारी की वजह से शायद पीछे रह गए। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम अच्छी तैयारी कर आएंगे तो इंशाअल्लाह मजीद कामयाबी मिलेगी। मुईज भाई को मुबारक हो। मुईज भाई हमारे सेमीफाइनल तक पहुंच चुके हैं। माशाअल्लाह। इसी के साथ नाज़रीन हमारा प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। हमें दीजिए इजाजत। इंशाअल्लाह आपसे कल फिर मुलाकात होगी, सेम टाइम सेम चैनल, मगर एक नई टीम के साथ। हमारा इंतजार कीजिएगा। सी यू सून। देखते हैं कौन देगा उसका जवाब। ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर। बच्चों का मदनी चैनल आ गया।